increase the dilution. On increasing the dilution, how the molar conductivity of strong and weak electrolyte vary. So first of all, we have to discuss about conductance. So conductance is the ease of flow of electron. Ease of flow of electron is called conductance. So for we have to study conductance for strong and weak electrolyte. So for strong and weak electrolyte, if we decrease the concentration, concentration, if we decrease the concentration or increase the dilution, if we decrease the concentration or increase the dilution, then what happen? Then volume of the electrolytes, electrolytic solution increase. Then volume of the electrolytic solution increase. If we decrease the concentration, this means we are adding the water to the solution. This means we are increasing the dilution of the solution. Means the volume of the electrolytic solution increases, and the volume of the electrolytic solution increases. The conductance for both strong electrolytes and weak electrolytes increases. Conductance for strong and weak electrolytes both will increase if we increase the dilution or decrease the concentration. And for the weak electrolyte, what are the weak electrolytes? Weak electrolytes are those type of electrolytes which dissociate very less or partially dissociate. Means the dissociation degree of dissociation means alpha. Alpha is the degree of dissociation for weak electrolyte, and the uh, degree of dissociation is less than 5% for weak electrolyte, and for strong electrolyte, strong electrolyte it is 100%. So for weak electrolyte, if we increase the volume or if we increase the dilute, if we decrease the concentration and increase the dilution, means we are increasing the volume, or dilution will increase, then alpha will increase. What is alpha? Alpha is the degree of dissociation. Degree of dissociation will increase. मतलब जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं बच्चों, वो बहुत ही कम डिसोसिएट होते हैं पानी में. जैसे हम पानी की क्वांटिटी बढ़ाते रहते हैं तो उनका जो डिसोसिएशन है वो बढ़ता रहता है. डिसोसिएशन बढ़ता रहता है क्योंकि जो डिसोसिएशन होता है बच्चों अल्फा, अकॉर्डिंग टू ऑस्वाल्डो 1 अपॉन कंसेंट्रेशन होता है. अगर हम कंसेंट्रेशन को कम करते हैं तो क्या होगा? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ता है. if we decrease the concentration, the value of alpha, degree of dissociation increases. What is the reason behind that? On increasing the dilution, the degree of dissociation for electrolytes increase because the number of ions increase. जैसे जैसे हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर हम क्या करते हैं बच्चों? पानी ऐड करते रहते हैं तो क्या होगा? उसका डाइल्यूशन बढ़ता है, उसका कंसंट्रेशन कम होता है. और जैसे जैसे उनका कंसंट्रेशन कम होता है, डाइल्यूशन बढ़ता है, तो उसमें क्या होंगे बच्चों? नंबर ऑफ आयंस क्या होंगे? इंक्रीज होंगे. नंबर ऑफ आयंस मतलब केटायन और एनायन क्या होंगे? इंक्रीज होंगे. नंबर ऑफ आयंस केटायन एंड एनायन क्या होंगे? इंक्रीज होंगे. इंक्रीज होने का रीजन क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगा, ज्यादा वो अपने आयंस के अंदर ब्रेक होंगे. द वीक इलेक्ट्रोलाइट विल ब्रेक इनटू देयर रेस्पेक्टिव आयंस मोर व्हेन वी ऐड more water to it, and hence for the conductance of weak electrolyte increases. I hope this point is clear to all of you. Now for what happen for strong electrolyte, if we decrease the concentration and increase the dilution. So strong electrolytes are those electrolytes which dissociate 100%. Strong electrolytes are those electrolytes which dissociate 100%. This means the degree of dissociation for strong electrolyte, degree of dissociation for strong electrolyte is always 100% or nearly to 100%. तो 100% के आसपास होता है. तो इसके लिए जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है उसकी वैल्यू क्या होती है बच्चों? 1 होती है.
इसके लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा की वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, इसको 1 लिख सकते हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 होता है, इसका मतलब जितना हमने मॉलिक्यूल लेते हैं, जितना मॉलिक्यूल लेते हैं वो पूरा मॉलिक्यूल अपने आयंस के अंदर ब्रेक हो जाता है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में NaCl का एग्जांपल लेते हैं। NaCl इज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। NaCl, व्हेन वी put NaCl in water, then it completely dissociate into its respective ion, Na positive and Cl negative. It completely dissociate into its respective ion, Na positive and Cl negative. This means the degree of dissociation for strong electrolytes is almost 100%। तो बच्चों पहले से क्या है 100% डिसोसिएट हो जाते हैं। अब इसमें क्या होगा, इसका अगर वॉल्यूम बढ़ाते हैं या इसका डाइल्यूशन बढ़ाते हैं, डाइल्यूशन बढ़ाओ या इसका वॉल्यूम बढ़ाओ एक ही बात है। तो इसमें क्या होगा, ये देखो ये हम बता रहे हैं, ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस present in strong electrolytes, and when the negative and positive ions are nearby with each other, then the attraction power is more. And when we add water in the same electrolyte, and if we increase the dilution, then the distance between the ions increase। तो डिस्टेंस जब इसकी इंक्रीज होती है, आयंस के बीच की जब डिस्टेंस इंक्रीज होती है, तो क्या होता है, उसकी कंडक्टिविटी बढ़ती है। जैसे मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ बच्चों, ये एक हमने एक कंटेनर लिया है, एक कंटेनर है, कंटेनर के हमने एक कंटेनर में हमने एक सॉल्यूशन बनाया, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बनाया, जिसके अंदर हमने NaCl लिया, 1 मोल NaCl लिया। दिस मीन्स दिस इज द 1 मोलर solution of NaCl, 1 molar। The concentration of this solution is 1 molar। Now what happen if I add 1 liter water to the same solution। अब मैं क्या करता हूँ, इस सेम सॉल्यूशन के अंदर मैं क्या करता हूँ बच्चों, 1 लीटर पानी और मिला देता हूँ। 1 लीटर पानी इसमें क्या कर देता हूँ और ऐड कर लेता हूँ। अब 1 लीटर पानी में मिलाने से क्या होगा इसमें, अब इसकी क्या होगी बच्चों, डाइल्यूशन बढ़ जाएगी। डाइल्यूशन बढ़ जाएगी, इसका मतलब जो आयंस के बीच की जो डिस्टेंस है बच्चों, जो पहले आयंस पास पास में थे, ये पॉजिटिव आयंस है सपोज, और ये नेगेटिव आयंस है। जो आयंस पहले पास पास में थे, अब क्या होंगे बच्चों, ये आयंस क्या होंगे, दूर दूर हो जाएंगे। ये पॉजिटिव आयन इधर आ जाएगा, नेगेटिव आयंस इधर आ जाएंगे। कहने का मतलब है जैसे हम इसमें डायल्यूशन बढ़ाएंगे, इसके आयंस के बीच की जो डिस्टेंस है वो बढ़ेगी, और आयंस के बीच की डिस्टेंस बढ़ेगी तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी। कंडक्टिविटी बढ़ने का रीजन क्या है, अगर आयंस पास पास में होंगे तो क्या होंगे, आयंस के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा होगा, और आयंस के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो ये आयंस आपस में अट्रैक्ट होकर क्या बना लेंगे बच्चों, NaCl का मॉलिक्यूल बना लेंगे। NaCl का मॉलिक्यूल बना लेंगे, और NaCl का जो मॉलिक्यूल है बच्चों, वो क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, ना तो इसके ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव चार्ज है। जैसे हम इसमें पानी मिलाएंगे तो आयंस के बीच की जो डिस्टेंस है बच्चों क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगा, बिकॉज वाटर इज ए गुड सॉल्वेंट। तो पानी का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो बहुत ज्यादा होता है। पानी इज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट और पोलर सॉल्वेंट भी है, और पानी का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो हमने 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 11th क्लास में पढ़ा है, इट इज नियर बाई 80। दिस इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर। तो पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होता है, इस वजह से क्या करता है, पानी के बीच की जो डिस्टेंस को हम क्या करता है, ये बढ़ा देता है। और पानी के अंदर आयंस के बीच की डिस्टेंस बढ़ती है तो क्या होता है, कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। कहने का मतलब ये है बच्चों कि अगर हम डाइल्यूशन बढ़ाते हैं दोनों के केस में, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स एज वेल एज वीक इलेक्ट्रोलाइट, द कंडक्टेंस इंक्रीजेस बोथ फॉर बोथ द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट, द कंडक्टेंस इंक्रीजेस। आई होप ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कौन कौन से बच्चों, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर हम एग्जांपल ले सकते हैं NaCl, HCl, सल्फ्यूरिक एसिड, मैग्नीशियम क्लोराइड, HNO3, NaOH, ये सारे क्या बच्चों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। और जो वीक, जो इसका जो डिसोसिएशन होता है कितना होता है बच्चों, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना होता है, 100% होता है। ये 100% डिसोसिएट होते हैं, 100% डिसोसिएट होते हैं। और इसका जो डिसोसिएशन होगा वो क्या होगा 100% होगा। जितने हम मॉलिक्यूल लेंगे, जितने हम क्वांटिटी में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, वो पूरे पूरे पानी के अंदर क्या हो जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं, टूट जाते हैं। अब इसमें पानी और ज्यादा मिलाने से इसकी जो कंडक्टेंस तो बढ़ती है, लेकिन उतनी ज्यादा नहीं बढ़ती जितनी की वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में बढ़ती है, वो अभी हम समझेंगे। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं बच्चों, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसे इलेक्ट्रोलाइट से जो पानी के अंदर 100% डिसोसिएट नहीं होते, उनका डिसोसिएशन लेस देन 5% होता है। अभी हमने इसको समझा था। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का एग्जांपल ये हमने पढ़ लिया। देन द वीक इलेक्ट्रोलाइट्स आर एसिटिक एसिड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड,
ऑल आर द वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, और बहुत सारे एग्जांपल है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के। तो इसका क्या होगा बच्चों, इसमें डाइल्यूशन बढ़ाने से इसकी भी कंडक्टेंस बढ़ती है। ये तो हमने पढ़ा था बच्चों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में, ये है वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में भी जब हम पानी मिलाते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट में जब हम पानी मिला देते हैं तो उसकी कंडक्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ती है एज कम्पेयर टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो मोलर कंडक्टिविटी को हम किससे लिखते हैं, lambda m से। lambda m is the molar conductivity, and for the equivalent conductivity lambda e is represented equivalent conductivity is represented by lambda e, whereas molar conductivity is represented by lambda m, and lambda m is equal to kappa into 1000 divided by molarity, and lambda e means equivalent conductivity is equal to kappa into 1000 divided by normality। तो बच्चों मोलर कंडक्टिविटी अगर हम डाइल्यूशन बढ़ाते हैं इसका मतलब अगर हम कंसंट्रेशन करते हैं तो किस तरह से इफेक्टेड होती है, अगर हम मोलर कंडक्टिविटी की हम बात करते हैं तो। और अगर हम क्या करते हैं बच्चों, डाइल्यूशन बढ़ाते हैं, डाइल्यूशन बढ़ाने का मतलब क्या होता है बच्चों, एडिंग द वाटर। इंक्रीजिंग द डाइल्यूशन का मतलब होता है एडिंग वाटर। इंक्रीजिंग द dilution means increasing the water or adding the water in the electrolytic solution। जब हम डाइल्यूशन बढ़ाएंगे इसका मतलब क्या हो रहा है बच्चों, इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, और जब वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो क्या होगा, जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो मोलरिटी कम होगी या बढ़ जाएगी, मोलरिटी क्या हो जाएगी बच्चों, कम हो जाएगी। मोलरिटी कम होती है, ये बात हमें याद रखनी है। व्हाट इज द मोलरिटी, molarity is the number of moles present in per liter of solution, number of moles present in 1 per liter of solution is called molarity। तो अगर हम वॉल्यूम बढ़ाते हैं तो क्या होगी, मोलरिटी कम होगी, ये मोलरिटी कम हो जाएगी बच्चों। अगर हम डाइल्यूशन बढ़ाते हैं, इसकी कंसंट्रेशन कम करते हैं तो मोलरिटी कम होगी, और मोलरिटी कम होगी तो क्या होगा बच्चों, लेमडा एम की वैल्यू बढ़ेगी, इसका मतलब मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है। इफ वी decrease the concentration or increase the dilution, again and again I am saying the same thing, if we increase the dilution or decrease the concentration, then the molar conductivity as well as equivalent conductivity both increases। next is डाइल्यूशन को इंक्रीज करते हैं, डाइल्यूशन को इंक्रीज करते हैं तो कप्पा की वैल्यू कम होती है। डाइल्यूशन को अगर हम इंक्रीज करेंगे तो कप्पा की वैल्यू कम होगी। तो व्हाट इज कप्पा, कप्पा इज द कंडक्टिविटी। बच्चों ध्यान रखना, कप्पा इज द कंडक्टिविटी। कप्पा को हम किससे लिखते हैं, इस टाइप के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज द कप्पा, इसको हम बोलते हैं कप्पा। ये मैंने कल वाले लेक्चर में भी बताया है कप्पा। एंड कप्पा इज द कंडक्टिविटी। व्हाट इज द कप्पा, कप्पा इज द अमाउंट ऑफ ions present in 1 ml of electrolyte, amount of ions present in or number of ions present in, number of ions number of ions present in per ml of solution is called kappa। per ml of solution, number of ions present in per ml of solution is called kappa। तो बच्चों अगर मान लो कोई एक सॉल्यूशन है, इसी सॉल्यूशन की अगर हम बात करते हैं, ये सॉल्यूशन हमने बनाया, अगर इसके अंदर मान लो एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, इसमें 1 ml सॉल्यूशन पड़ा है। 1 ml सॉल्यूशन के अंदर इसमें सिर्फ दो आयंस मौजूद है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, दो आयन इसके अंदर मौजूद है। अब इसके अंदर मैं पानी मिला देता हूँ, 1 ml को 1 ml की क्वांटिटी बढ़ाकर मैं क्या कर देता हूँ, 2 ml कर देता हूँ। तो अब 2 ml के अंदर, पहले 1 ml के अंदर नंबर ऑफ आयंस 2 थे, अब मैंने क्या किया बच्चों, 1 ml पानी और इसमें ऐड कर दिया। नाउ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज 2 ml। अब 2 ml के अंदर क्या होंगे बच्चों, दो आयंस मौजूद होंगे। तो क्या होगा बच्चों, जैसे जैसे हम डाइल्यूशन करते हैं वैसे वैसे कप्पा की वैल्यू कम होती है। कप्पा मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन 1 ml ऑफ सॉल्यूशन। 1 ml सॉल्यूशन के अंदर कितने आयंस मौजूद है उसको हम बोलते हैं कप्पा। तो डाइल्यूशन बढ़ाने से कप्पा की वैल्यू कम होती है। तो कप्पा की वैल्यू कम होगी, क्या कप्पा की वैल्यू कम होने से देखो, कप्पा की वैल्यू कम होने से, कप्पा की वैल्यू अगर कम होती है, ये कप्पा है, कप्पा का मतलब कंडक्टिविटी, कप्पा की वैल्यू कम हो गई तो क्या होगा, मोलर कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कप्पा।
we can see in this example the molar conductivity is directly proportional to the कप्पा। अगर हम कप्पा की वैल्यू को कम करते हैं, कंडक्टिविटी कम हो जाती है। कंडक्टिविटी कब कम होगी? जब हम डाइल्यूशन बढ़ाते हैं। ध्यान देना बच्चों, ध्यान से सुनना। अगर हम डाइल्यूशन बढ़ाते रहते हैं तो नंबर ऑफ आयंस पर एमएल सॉल्यूशन क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। और नंबर ऑफ आयंस पर एमएल सॉल्यूशन कम होंगे तो क्या होगा बच्चों? कप्पा की वैल्यू कम होगी, और कप्पा की वैल्यू कम होगी तो डेल्टा लेमडा एम की वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि लेमडा एम क्या होता है? लेमडा एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कप्पा, तो इसकी वैल्यू भी कम होगी as we increase the volume of the electrolytic solution। तो लेमडा एम भी कम होगा, और लेमडा मीन्स इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी कम होती है। नेक्स्ट, इफ इंक्रीज द डाइल्यूशन, दिस मीन्स वी आर इंक्रीजिंग द वॉल्यूम। दिस मीन्स वी आर इंक्रीजिंग द वॉल्यूम। तो अगर वॉल्यूम को हम बढ़ाते हैं तो मोलारिटी कम होती है और नॉर्मलिटी दोनों कम होती है। नॉर्मलिटी भी कम होगी और मोलारिटी भी कम होगी। तो व्हाई इंक्रीजिंग द वॉल्यूम और इंक्रीजिंग द dilution or decreasing the concentration, molarity and normality both are decreased because molarity is the number of moles present in per liter of solution। अगर मान लो पहले हमारे पास में 1 लीटर सॉल्यूशन है, अब उस 1 लीटर सॉल्यूशन को बढ़ा के हम 2 लीटर सॉल्यूशन कर देते हैं, नंबर ऑफ मोल्स तो वही रहेंगे। सपोज हम 1 मोल NaCl को पानी में डिसोल्व करते हैं और इसका 1 मोलर सॉल्यूशन बनाते हैं। अब इसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर हम क्या करते हैं बच्चों? 1 लीटर पानी और मिला देते हैं। 1 लीटर पानी और मिला देंगे तो उसकी मोलरिटी क्या हो जाएगी? मोलरिटी कम हो जाएगी ना। तो वॉल्यूम बढ़ाने से क्या होगा? उसका मोलरिटी कम होती है, साथ साथ में नॉर्मलिटी भी कम होती है। तो अगर मोलरिटी कम होगी, देखो बच्चों मोलरिटी कम होती है तो ये भी हमने इसका रिलेशन पढ़ा हुआ है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड नॉर्मलिटी विद molar conductivity and equivalent conductivity? This is the molar conductivity is inversely proportional to the 1 upon molarity। अगर हम molarity को कम क्या करेंगे बच्चों? कम करेंगे। molarity को अगर हम कम करते हैं, molarity कम होती है तो क्या होगी? molar conductivity बढ़ेगी। एंड सिमिलरली equivalent conductivity is inversely proportional to normality। तो वॉल्यूम बढ़ाने से नॉर्मलिटी कम होगी तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की वैल्यू बढ़ेगी। तो बोथ molar conductivity and equivalent conductivity depends more on moles and normality। तो ये देखा गया बच्चों, एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है। देखो दो बातें बच्चों, हमें इस बात को हमें ध्यान रखना है, इसको अच्छे से समझना है मोलर कंडक्टिविटी को। तो मोलर कंडक्टिविटी कप्पा के ऊपर डिपेंड करती है, मोलर कंडक्टिविटी नंबर ऑफ मोल्स एंड नंबर ऑफ इक्विवेलेंट के ऊपर डिपेंड करती है। तो क्या होता है जब हम डाइल्यूशन बढ़ाते हैं तो क्या होगा बच्चा? कंडक्टिविटी कम होती है। कप्पा इज द कंडक्टिविटी कम होती है, लेकिन उसकी क्या होगी बच्चों? मोलरिटी बढ़ती है। कंडक्टिविटी कम होती है और अगर हम डाइल्यूशन बढ़ाते हैं तो डाइल्यूशन बढ़ाएंगे तो क्या होगा बच्चों? डाइल्यूशन अगर हम करते रहते हैं तो डाइल्यूशन करने से क्या होगा? नंबर ऑफ आयंस पर एमएल ऑफ सॉल्यूशन वो क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। नंबर ऑफ आयंस पर एमएल ऑफ सॉल्यूशन क्या होंगे? कम होंगे। तो डाइल्यूशन करने से कंडक्टिविटी की वैल्यू कम होती है। तो कंडक्टिविटी की वैल्यू कम होगी तो लेमडा एम और लेमडा ई की वैल्यू भी कम होती है। और वॉल्यूम को अगर हम इंक्रीज करते हैं तो मोलरिटी कम होती है। तो मोलरिटी कम होने से लेमडा एम की वैल्यू बढ़नी चाहिए। तो एक फैक्टर ने क्या करता है? इसको लेमडा एम की वैल्यू को बढ़ाने का काम करता है। लेमडा एम की वैल्यू को बढ़ाने का काम करता है। एक फैक्टर क्या करेगा? लेमडा एम की वैल्यू को बढ़ाने